getting in these details of a sex abuse. This happened in ashram. It's a scoop that no one else has. Shocking Delhi ashram depravity stands exposed right here. Baba's debauchery, sex abuse saga there, molestation, obscene messages to girls. Ashram women staff helped in sex abuse. Girls reveal lewd messages abused by Baba in question on your screens. At this point in time, women ashram officials pressurized inmates. Ashram girls are forced into sex abuse by women staff. Female ashram staff are coerced and threatened. In fact, we'll be going across to Himanshu Mishra for more details on that story, but these are startling revelations that are coming in the Delhi sex abuse case, in the ashram sex abuse case, where the Baba in question on your screens at this point in time is allegedly involved. It's a molestation, obscene messages to girls that were sent. Ashram women staff helped in sex abuse, helping this Baba right here to abuse these women. Women ashram officials are pressurizing the inmates right there. Ashram girls are forced into sex abuse by the women staff. Female ashram staff were coerced and threatened. This incident is being reported from the Basant Kunj area in the national capital, in an ashram that we're getting you details of at this point in time. Baba's debauchery, sex abuse there. These are details that we have with us at this point in time. The manner in which the women officials essentially coerced the inmates and coerced the girls right there in this particular ashram, who were subsequently abused by the Baba in question. Chaitanyanand Saraswati is the man in question right now. Himanshu has more on that story that we are tracking at this point in time. Himanshu, इस पूरे मामले के डिटेल्स बताए. इस समय ये बताया जा रहा है कि जो आश्रम के जो विमेन स्टाफ थे वो भी इस पूरे मामले में इस बाबा के साथ इस अब्यूज में इन्वॉल्व थे, इस रैकेट में इन्वॉल्व थे. देखिए, ये जो पूरा रैकेट चल रहा था, इसमें जो आरोपी है चैतन्यानंद, वो चैतन्यानंद की जैसे ही कि वो अपने जो छात्राएं हैं, जो इंस्टीट्यूट चला रहा है चैतन्यानंद, जो छात्राएं हैं उनके साथ गलत हरकत कर रहा है, फिजिकल टच कर रहा है, इसके अलावा मैसेजेस भेज रहा है, अश्लील मैसेजेस व्हाट्सएप भेज रहा है. तो इंस्टीट्यूट को जैसे ही मठ को जानकारी मिली, मठ के संचालक की तरफ से एक कंप्लेन दी गई वसंत कुंज नॉर्थ थाने में, और कंप्लेन पर तुरंत एफआईआर रजिस्टर की गई. एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस ने जब गाड़ी देखा जिससे चैतन्यानंद चलता था, तो उसमें 39 UN1 लिखा हुआ था. जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चला नहीं, ऐसा कोई नंबर इस लग्जरी गाड़ी के लिए इशू नहीं किया गया है. तो पुलिस ने उस गाड़ी को सीज किया. उन तमाम मैसेजेस को पुलिस ने सबकी डिटेल ले ली है. सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने संभाल के रख लिया है. इसके अलावा 164 के बयान भी तमाम पीड़िताओं के, करीब 16 पीड़िताओं के दर्ज किए गए हैं और आगे की जांच की जा रही है. कई टीमें बनाई गई हैं जो चैतन्यानंद की तलाश में जुटी हुई हैं. पुलिस का कहना है कि लगातार उनकी कोशिश है कि चैतन्यानंद को जल्द से जल्द जो है वो पकड़ा जाए, ताकि जो अब तक के इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत, जो बयान उसके खिलाफ है, उसकी तफ्तीश की जा सके. और साथ ही साथ जो लड़कियों ने जो स्टेटमेंट दिया, उसमें 3 महिला कर्मचारियों का भी जिक्र है कि ये 3 महिला कर्मचारी जो चैतन्यानंद के अंदर काम करती थीं, उन तीनों ने कहा, वो तीनों लड़कियों से कहती थी बाकी कि तुम चैतन्यानंद की बात मान जाओ. तो ये भी इन्वेस्टिगेशन है. जब एक बार चैतन्यानंद पकड़ा जाएगा तो उससे पूछताछ होगी तो सारी चीजें क्लियर होंगी. जी, खुलासा कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है. हिमांशु, आई एम जस्ट गोइंग टू कम बैक टू यू इन अ मोमेंट फ्रॉम नाउ. Let's take our viewers through the details of what could have possibly happened here. These are the details that we have with us at this point in time as far as the ashram sex abuse saga here is concerned. Statements of 32 female students have now been recorded. What's horrible here is that 17 students have alleged abuse by the accused, who is absconding. This man on your screen right now is absconding. Complaints include obscene messages, unwanted physical contact. Victims claim the female staff abetted this abuse. Faculty pressurized the students to comply with the demands
of the accused. Himanshu continues to be with us. Himanshu, इस पूरे मामले में खुलासा कैसे हुआ? खुलासा तब हुआ जब मठ को इसके बारे में जानकारी मिली, और मठ को जैसे ही जानकारी मिली, संचालक ने तुरंत एक कंप्लेंट नॉर्थ वसंत कुंज थाने में दी, जिस पे एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की गई। और जब छात्राओं के बयान दर्ज किए गए तब सारी चीज़ें सामने आई। और उसके बाद पुलिस अब इस मामले में दो तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक तो बाबा की तलाश की जा रही है, उसके लिए तमाम टीमें निकाली गई हैं। लास्ट लोकेशन उसका आगरा में मिला था, तो उस पूरे इलाके में पुलिस छानबीन कर रही है। नंबर दो, साथ साथ जब बाबा पकड़ा जाए तब तक कहीं कोई सबूत छूट न जाए, इसके लिए पुलिस ने तमाम जिन छात्राओं का नाम था उनके बयान दर्ज करवा लिए कोर्ट के सामने। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर लिए। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के बाद जो व्हाट्सएप मैसेजेस करने की बात थी, वो पुलिस ने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और जो थे उनको जब्त कर लिए। उन 3 महिला कर्मचारियों जिसका नाम की पुलिस के सामने पीड़ित छात्राओं ने लिया था, उन छात्राओं के बयान के आधार पर उन तीनों महिला कर्मचारियों का पुलिस ने स्टेटमेंट रजिस्टर कर लिया है। तो इस पूरे मामले में जांच जारी है और साथ साथ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश जारी है। जी, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा getting in those details. Arvind Oja also tracking that big story for us. अरविंद, ये कितने दिनों से इस आश्रम में चल रहा था और क्या डिटेल्स है? कैसे इतने दिनों से ये अननोटिस गया? 17 विक्टिम्स हैं इस बाबा के अब्यूज के, वो शिकार हुए हैं। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ये 17 जो लड़कियां हैं उन्होंने कंप्लेन दी है और दिल्ली पुलिस को स्टेटमेंट दी है, लेकिन इंडिया टुडे को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बाबा के खिलाफ पहले भी दिल्ली में अलग अलग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती रही है। 2 एफआईआर की डिटेल इंडिया टुडे के पास है, जिसके मुताबिक इस बाबा के खिलाफ 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में फॉर्जरी और छेड़खानी की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उसके बाद 2016 में वसंत कुंज इलाके में वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मोलेस्टेशन की एफआईआर दर्ज है। यानी जो ये बाबा है, इसकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। अब इसके खिलाफ कहां कहां एफआईआर दर्ज है, दिल्ली पुलिस उसकी डिटेल्स भी खंगाल रही है। फिलहाल जो ये बाबा चैतन्यानंद है, ये एब्सकॉन्डिंग है। इसको अरेस्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। जो आश्रम की 3 महिलाएं हैं, उनके बयान भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए हैं, उनके स्टेटमेंट भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए हैं। क्योंकि जो ये 17 लड़कियां हैं, इन्होंने ये बताया कि आश्रम की 3 महिलाएं बाबा के इशारे पर बाकी लड़कियों पर दबाव बनाती थीं। इस वजह से इन 3 जो महिला हैं, जिन पर 17 लड़कियों ने आरोप लगाया, उनसे दिल्ली पुलिस की टीम ने पूछताछ की, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब स्वामी अरेस्ट होगा उसके बाद ही इन जो महिलाएं हैं इनका रोल क्लियर होगा। लेकिन अभी जो शॉकिंग डिटेल इंडिया टुडे को मिली है उसके मुताबिक पहले भी 2 एफआईआर की हुई है, उसकी डिटेल्स दिल्ली पुलिस को मिली है, जिसमें 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में फॉर्जरी और मोलेस्टेशन का और 2016 में वसंत कुंज में मोलेस्टेशन की एफआईआर स्वामी के खिलाफ दर्ज हुई थी। और भी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हो सकती है, जिसकी डिटेल्स दिल्ली पुलिस लगातार खंगाल रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद ओझा getting in those details. I'm going to also thank Himanshu Mishra for reporting on that story, telling us about the situation there as far as this entire scandal is concerned. Girls revealed their lewd messages were sent. There was abuse by the Baba in question right here. And this incident was, or rather a series of these incidents, and this crime was abetted by the women staff of this particular ashram. Female ashram staff actually coerced the women to give in. And that's the reason why they are also under this scanner at this point in time. It's the depravity which now stands exposed. 17 plus women accusing the Delhi Baba of molestation. The car has fake embassy plates. Women, faculty, administrative staff pressured the students to comply with the demands of the accused, is what the victims have now alleged. He's the director of a well-known ashram in Delhi's posh Vasant Kunj area, accused of sexually harassing over a dozen plus women.
Swami Chaitanyanand Saraswati, alias Partha Sarthi, faces a police case, is now absconding.